السلام علیکم، میں آپ کے ٹیچر ناسیہ مس۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 7 برج کورس عملی خاکہ نمبر 13 مضمون سائنس یہ پڑھیں گے۔ قوت اور قوت کی قسمیں۔ قوت اور قوت کی قسمیں یہ جمع ششم کے سبق سے لیا گیا ہے۔ متوقع صلاحیتیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ میں کیا صلاحیت پیدا ہوگی؟ تجسس پر مبنی سوالات کے جواب آسان تفتیش کا نظم کر کے حاصل کرتا ہے۔ مطلب آپ کو کسی بھی چیز کو جاننے کا جستجو ہو جائے گی اور آپ اسی تجسس کی بنا پر سوالات کے جوابات کو تلاش کریں گے اور حاصل کریں گے۔ ہم کو کیا ذہن نشین کرنا ہے؟ شے کو کسی بھی طرح کھینچنے ڈھکیلنے کے لیے لگائی ہوئی طاقت کو قوت کہتے ہیں۔ کسی بھی شے کو ہٹانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح متحرک شے کی سمت بدلنے، اسے ساکن کرنے کے لیے قوت کا استعمال ہوتا ہے۔ شے کی شکل بدلنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز کو جب ہم کو ڈھکیلنا ہوتا ہے یا اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے تو ڈھکیلنے کے لیے اور کھینچنے کے لیے ہم جو طاقت لگاتے ہیں اسی کو ہم قوت کہتے ہیں۔ کسی بھی شے کو ہٹانے کے لیے، کسی بھی شے کو کے ہٹنے کے لیے قوت ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح کوئی شے جب متحرک ہوتا ہے یعنی حرکت کرتا ہے یا اس کی سمت بدلنے کے لیے یا چلتی ہوئی شے کو روکنے کے لیے، اس سب کے لیے ہم کو قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ شے کی شکل بدلنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی شے کھڑی ہے اور اس کو ہم کو چلانا ہے تو ہم کو قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شے چل رہی ہے اور اس کو روکنا ہے تو ہم کو قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یعنی قوت میں حرکت لانے کے لیے یا اس کو ساکن حالت میں کرنے کے لیے ہم کو قوت لگانی ہوتی ہے۔ قوت کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں ہم کو پہلی قسم پڑھنا ہے عضلاتی قوت۔ عضلاتی قوت مطلب جو انسان اپنے جسم کے ذریعے قوت لگاتا ہے اسے عضلاتی قوت کہتے ہیں۔ جیسے ہاتھ سے گیند پکڑنا، ہاتھ پیر سے کسی چیز کو ڈھکیلنا یا اپنی طرف کھینچنا، یہ سب عضلاتی قوت کہلائے گی۔ عضلات کی مدد سے لگائی ہوئی قوت کو عضلاتی قوت کہتے ہیں۔ مشینوں کے ذریعے لگائی ہوئی قوت کو میکینکی قوت کہتے ہیں۔ اب دوسری مثال کون سی ہے؟ میکینک قوت۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے جسمانی اعضاء کے بجائے کسی مشین کا استعمال کرتے ہیں تو وہ میکینکی قوت کہلاتی ہے۔ یہ ہو گیا عملی خاکہ نمبر 13 اور اسی کے ساتھ ہم آگے عملی خاکہ نمبر 14 قوت کی قسمیں اور ثقلی قوت اور مقناطیسی قوت۔ اب دیکھو جیسے پچھلے خاکے میں ہے، خاکہ نمبر 13 میں ہم نے 2 قوت پڑھی، ایک عضلاتی قوت اور دوسری میکینکی قوت۔ اب اس میں ہم کو ثقلی قوت پڑھنا ہے، مقناطیسی قوت پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم پہلے ثقلی قوت پڑھتے ہیں۔ زمین جس قوت سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسے ہم ثقلی قوت کہتے ہیں۔ زیادہ وزن اٹھانے کے لیے زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے۔ چھوٹے تیلے پر ثقلی قوت کم ہے یعنی اس کا وزن کم ہے۔ بڑے تھیلے پر ثقلی قوت زیادہ ہے یعنی اس کا وزن زیادہ ہے۔ یہاں دیکھو 2 تصویر دکھ رہی ہیں، ایک تصویر میں تھیلا چھوٹا ہے اور ایک تصویر میں تھیلا بڑا ہے۔ تھیلا چھوٹا ہے مطلب کم وزن ہے، تو کم وزن کے لیے ہمیں کم قوت لگانی پڑے گی اور زیادہ وزن اٹھانے کے لیے ہمیں زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے۔ شے پر عمل کرنے والی ثقلی قوت اسی شے کا وزن ہوتا ہے، یعنی جتنا بھی ہم کو وزن اٹھانے کے لیے ثقلی قوت لگاتے ہیں ہم، وہی اس کا وزن کہلاتا ہے۔ اب مقناطیسی قوت، مقناطیس کے ذریعے لگائی گئی قوت کو مقناطیسی قوت کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو اٹھانے کے لیے اس پر قوت مقناطیس کے ذریعے ڈالتے ہیں تو وہ مقناطیسی قوت کہتی ہیں۔
ये समझ में आया। वो गेंद को कुव्वत लगाकर आसमान की तरफ फेंका जाए तो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर फिर वो गेंद वापस नीचे आती है, इसकी वजह मालूम कीजिए। देखो, जब हम कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ क्यों आती है? क्योंकि हमारी ज़मीन की कुव्वत कशिश होती है, जिसे हम सकली कशिश कहते हैं, और यही सकली कुव्वत कहलाती है। इसी वजह से, इसी सकली कुव्वत की वजह से जब किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो वो दोबारा पलटकर ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, और उसी कुव्वत कशिश की वजह से वो नीचे आती है, सकली कुव्वत की वजह से नीचे आती है। एक मेज़ पर लोहे की कीले, कांच के ग्लास और प्लास्टिक की अशिया रखिए। एक मकनातीस को इसके करीब ले जाइए। इनमें से कौन सी चीज़ें मकनातीस को कशिश करती हैं, इसे देखिए। देखो, हम लोहे की चीज़ें रखेंगे, कांच का ग्लास और प्लास्टिक की अशिया। तो देखो, कांच और प्लास्टिक जो है ये मकनातीस के मौसिल नहीं है, यानी वो उसके ऊपर अमल नहीं करते, लेकिन लोहा जो है वो मकनातीस को, लोहे को कशिश करता है। तो जो लोहे की कीलें हैं वो मकनातीस पर चिपक जाएगी और कांच और प्लास्टिक पर उसका कोई असर नहीं होगा। प्लास्टिक के कागज़ की मछलियाँ बनाइए। मछलियों के एक जानिब पिन लगाइए। एक गहरे तश्त या बर्तन में पानी लेकर इसमें मछली छोड़िए। मछली पानी में तैरती है। एक मकनातीस लेकर पानी के ऊपर घुमाइए। मछलियों को पानी में घूमने की वजह मालूम कीजिए। देखो, क्योंकि हमने प्लास्टिक के कागज़ की मछली बनाई, हमने प्लास्टिक के कागज़ की मछली बनाई, लेकिन उसकी एक जानिब हमने पिन लगाई है, तो जो पिन है वो लोहे की बनी हुई रहेगी, और लोहा मकनातीस से कशिश करता है। इसलिए जब हम वो मछली को बर्तन में डालेंगे और ऊपर से पानी के ऊपर में मकनातीस घुमाएंगे तो मछलियाँ घूमेंगी, क्योंकि वो जो उसमें पिन लगी हुई है वो हमारे घुमाने की वजह से रद्द अमल करेगी मकनातीस की वजह से, इसलिए वो मछली पानी में घूमने लगेगी। अब ये दोनों खाके को अच्छी तरह समझने के लिए मैं साथ में एक वीडियो डाल रही हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको ये दोनों खाका बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़। सबक नंबर 10, कुव्वत और कुव्वत की किस्में। तस्वीरों को देखकर जवाब दीजिए। चप्पू ना चलाया जाए तो क्या पानी में नाव आगे बढ़ेगी? नंबर 2, बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कुव्वत लगाता है? नंबर 3, फुटबॉल खेलते वक्त गेंद में हरकत किस वजह से पैदा हुई? उसकी सिमत क्यों कर बदलती है? नंबर 4, क्या लकड़ी से ढकेले बगैर टायर आगे बढ़ेगा? अपनी तरफ आती हुई गेंद गोल पोस्ट की सिमत में धकेलने के लिए हम उसको गोल पोस्ट की सिमत में पैर से ढकेलते हैं, यानी कुव्वत लगाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी चीज़ को उठाना, साइकिल चलाना और बर वक्त रोकना, वज़न ढकेलना, निचोड़ना, झुकना, गाड़ी चलाना जैसे कई काम करते हैं। इनके लिए हमें ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। शय को किसी भी तरह खींचने और ढकेलने के लिए लगाई हुई ताकत को कुव्वत कहते हैं। कोई भी शय बजाते खुद जगह नहीं बदलती। शय को हटाने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। मुतहरिक शय की सिमत बदलने और उसे साकिन करने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल होता है। तस्वीर में अंजाम पाने वाले तमाम कामों में जिस्म की हड्डियों और उज़लात की वजह से हरकत होती है। सामने की तस्वीर में वज़न उठाने वाला शख्स उज़लात की कुव्वत इस्तेमाल करके वज़न उठा रहा है। उज़लात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। नंबर 2, मीकान की कुव्वत। कई काम करने के लिए हम मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मशीनें चलाने के लिए उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल होता है। कुछ मशीनें बिजली या ईंधन का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं। ऐसी मशीनों को खुदकार मशीनें कहते हैं, क्योंकि इसमें मीकान की कुव्वत लगाई जाती है। मसलन सिलाई मशीन, बिजली का पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर वगैरह। मशीनों का इस्तेमाल करके हम कई काम करते हैं। मशीनों के ज़रिए लगाई गई कुव्वत को मीकान की कुव्वत कहते हैं।
नंबर 3, शकली कुव्वत। किसी शय को कुव्वत लगाकर ऊपर फेंका जाए तो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वो नीचे वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरख्त के फल टूटकर ज़मीन पर क्यों गिरते हैं? ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन जिस कुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है इसे शकली कुव्वत कहते हैं। ऐसा हो चुका है। सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं सदी में कशिश शकल को दरियाफ्त किया। ज़मीन की शकली कुव्वत हमेशा ऊपर जाने वाली शय के मुखालिफ सिमत अमल करती है, इसलिए ऊपर फेंकी गई शय की रफ्तार बतदरीज कम होती जाती है और आखिर में वो सिफर हो जाती है। तब शय मज़ीद ऊपर ना जाकर नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते वक्त उसकी रफ्तार में शकली कुव्वत की वजह से मसलसल इजाफा होता है। एक छोटा पत्थर और एक बाल्टी पानी लीजिए। बाल्टी से तकरीबन 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से पत्थर को पानी में छोड़िए। पानी में पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। अब उसी पत्थर को 60 सेंटीमीटर ऊंचाई से पानी में डालिए। पत्थर पानी में गिरते ही आवाज़ सुनाई देती है। ऊपर के दोनों अमल में आवाज़ में क्या फ़र्क होता है? इससे क्या वाज़ेह होता है? नंबर 2, तस्वीर में थैले उठाने का अमल नज़र आ रहा है। एक थैला छोटा और दूसरा बड़ा है। ये दोनों थैले उठाने में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? छोटे थैले पर शकली कुव्वत कम है यानी उसका वज़न कम है। बड़े थैले पर शकली कुव्वत ज़्यादा है यानी उसका वज़न ज़्यादा है। ज़्यादा वज़न उठाने के लिए ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है। क्या आप जानते हैं शय का वज़न मालूम करने के लिए उसे कमानीदार तराजू के हुक से लटकाते हैं। लटकाई हुई शय ज़मीन की शकली कुव्वत की वजह से नीचे खींची जाती है। इसी वक्त स्प्रिंग के तनाव की कुव्वत शय को मसलसल ऊपर खींचती है। जब स्प्रिंग का तनाव और ज़मीन की शकली कुव्वत मसावी हो जाते हैं उस वक्त शय साकिन हो जाती है। इस हालत में तराजू पर बनी पैमाइशी पट्टी से शकली कुव्वत वाज़ेह होती है यानी शय का वज़न मालूम होता है। शय पर अमल करने वाली शकली कुव्वत यानी उस शय का वज़न होता है। निज़ाम शमसी में सूरज और सैयारों के दरमियान कशिश शकल की कुव्वत अमल करती है, इसलिए सैयारे मसलसल सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। उसी के साथ सैयारों और ज़ैली सैयारों के दरमियान भी शकली कुव्वत होती है। मिकनातीसी कुव्वत। मेज़ पर एक मिकनातीस रखिए। मिकनातीस के करीब एक लोहे की बड़ी कील ले जाइए। वो मिकनातीस से चिपक जाती है। अब मिकनातीस को हवा में कील से दूर खड़ा पकड़िए। क्या होगा? मिकनातीस के जरिए लगाई गई कुव्वत मिकनातीसी कुव्वत कहलाती है।